question is batteries die in 5 to 7 years. What do you think? Wrong. Totally, क्या कहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसमें? it's a complete myth. बैटरीज अगर आप फोन भी खरीदते हो आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, तो people do not relate that warranty with the life of the battery. The Agreed. same way people relate here कि 8 साल की वारंटी मिल रही है OEM से, which is the minimum right now. So we have cars with lifetime warranty now, which is 15 years. But Wow. talking about the 8 years, the question you have asked, अगर 8 साल की OEM से वारंटी मिल रही है, तो इसकी लाइफ अगर 3 गुना चल रही है फोन की बैटरी की 1 साल की वारंटी के बाद, तो वो 3 गुना लगाओगे तो इट विल गो मच बियॉन्ड. देन देयर इज अ सेकंड लाइफ टू द बैटरी. इट इज नॉट दैट कि हम जब फोन छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल जीरो हो चुका होता है. True. या बैटरी जीरो हो चुकी होती है. वी लीव इट व्हेन द सेकंड लाइफ स्टार्ट्स. व्हेन द 30% goes down, the SOH is about 70%, और लगता है कि अब ये पूरे दिन की बजाय सिर्फ 3 घंटे चल पाता है दिन में, so we change it. The same way. Very true. See, it's a chemistry, right? And there are charge cycles associated with any battery's life. Yes. Battery's life is counted in terms of number of charging cycles. So the minimum, charging cycle. So there are two commonly used chemistries. One is NMC, one is LFP. NMC comes with around 1500 charge cycles and LFP comes with 2500 charge cycles. Right. So what charge cycle means is, let's say my car is running 300 kilometers in 100%. So it would, if I have 2500 charge cycles for my car, that means it would go till 7,50,000 kilometers. Nobody drives that in any of the personal cars, at least commercial, maybe they are doing it. Course. So batteries outlast the life of car. It is a complete myth that we'll have to change a battery. Batteries will outlast the life of car. There is again second life to once the car is not usable and battery is still there, then it starts the second life of battery, which is even more exciting than the first life. You can use it into the bus, you can use it in so many applications. So batteries outlast the car's life is what I would say. And डेट तो कभी भी नहीं होती, जो क्वेश्चन था. Exactly. डेट तो कभी भी नहीं होती. They are 100% renewable. Yes. They could be recycled. They 99.80% अभी तक लिथियम रिसाइकल हो जाता है. Yes. after second life, that's the third life, I would say. Recycling is the third life. And then again back and forth. I सब कुछ think वापस चल रहा है. battery may get faulty, but never dead. That's different thing. So faulty is if OEMs, we have to give that credit to the OEMs today. They are giving lifetime warranties now. If it is faulty, then it is They will covered change under free warranty. of cost, yeah. And मतलब वही है कि faulty हो सकता है, but it will never be dead like. Yep. वैसे. Of course, first life, second life, third life, fourth life, end of life. That's how it'll go. एक और इसी में क्वेश्चन है जहाँ लोग कहते हैं कि EVs जब पानी होता है, वाटर लॉगिंग जब स्पेशली होता है एंड फ्लडिंग हो गया तो थोड़ा पानी भर गया, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को वहाँ चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है. आप अगर इस पे एक्सप्लेन अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाए कि क्या ये ट्रू है एंड इज इट ट्रू फॉर टू व्हीलर्स और एनी स्पेसिफिक कैटेगरीज. So water and vehicle should not be mixed. That's number one. Any of the It is dangerous for any of the vehicle. vehicles, yes. But if we do comparative study, EVs fare much better than ICE in waterlogged areas. Reason is EVs comes with the much higher water wading capacity as a specification from OEM. So they are good to go in deeper water than ICE. In ICE, we have two things. One is a tailpipe and one is the place from where it sucks the air. Yes. So any of those two, inlet or outlet, if water enters, it will stop and it may create some irreversible damages also. In EVs, everything is IP rated. Till that IP rating is achieved, there is nothing which can go wrong in the EVs. Even if they are submerged, you'll at least get out of the water. Especially in Gurgaon, like we see in every season that there's a lot of water logging. So we see hanging number plates of the cars. You will never see that in EV. Reason is EVs बड़ा प्यार से आप पानी में से निकाल के लेके जा सकते हो. बट इज इट दैट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मेरा बैटरी ही नीचे है
और वाटर लॉगिंग अगर है तो So batteries are That's it. IP67 rated at minimum today, Okay. and that rating says is if you submerge, keep the battery submerged for half an hour, there'll be no problem. टिल दैट तब तक वो उसको झेल सकती है बाकी बिल्कुल. half an That's hour the in rating. continuity. इन क्वांटिटी And that too 1 meter deep in the water. So कई बार क्या होता है what he is saying is totally right, fair point कि पहले तो उनका कभी भी combination नहीं होना चाहिए, but yes अगर गाड़ी फंस गई है आप पानी में हो and you are comparing it to the other vehicles, the ICE basically, तो yes EVs perform much better, but many a times what happens because we know they perform much better, हम उसको बार बार पानी वाली साइड Abuse से करते ले हैं. जाते हैं, ठीक है. Which is उससे wrong. क्या होता है जब वो 30 मिनट्स वाटर वेटिंग वाला जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे हल्का हल्का फेड ऑफ होता जाता है, Of जो course. सीलेंट है, Yes. ठीक है, वो कमजोर पड़ता जाता है. इन लेमन लैंग्वेज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस. तो अगर वो पानी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप 5 मिनट ही पानी में होगे और गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि उसमें पानी भर गया. Or even it could be physically damaged also, which would अभी एक I don't damage know the if I seal should talk also. about it, but recent एक केस हुआ था, एक कर्व ईवी में आग लगी थी, नेक्सॉन ईवी में, yes, एंड वो गाड़ी कोलकाता में फ्लडेड हो गई थी, वेस्ट बंगाल में, वो फ्लडेड गाड़ियों के अंदर थी, सोसाइटी में खड़ी रही थी, वहाँ पानी भर गया था, वो 2-3 दिन तक पानी भरा रहा. आरएस से बुलाया क्योंकि पूरे क्या कहते हैं वेस्ट Society बंगाल में में. फ्लड था, जी. तो वो इस चक्कर में आरएस से 2 दिन 3 दिन नहीं आया, ठीक है. जब तक वो आने की बारी आई तब तक जो ओनर था वो ट्रैवल कर रहा था. आने के बाद में अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई बिकॉज रीसेंट इंसिडेंट है, लेकिन क्या हुआ उन्होंने चार्जिंग पे लगाया, खड़े खड़े आग लगी, क्या हुआ वो जलने लग गई. सो कहीं ना कहीं वो पानी बैटरी के साथ जुड़ा और जो इन्होंने बात कही कि वो नहीं होनी चाहिए थी, वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, तो वो रहता है. बट येस अनलाइक CNG और अनलाइक पेट्रोल इट इज नॉट ए बॉम्ब. Okay, a lot of people related to bombs, to fire, catching more, EVs catching more fire. Yes. But जो एक US की भी क्या कहते हैं एजेंसी की रिपोर्ट है, उसमें हर साल सबसे ज़्यादा गाड़ियों में जिसमें आग लगती है, highest is 2500 cars which is petrol. Wow. Then comes 250 cars which is hybrid, and then comes EV which is sitting at 25 cars per year. ये थोड़ा उल्टा हो गया. Hybrids are the most prone among if we leave I apart think the पेट्रोल gas. वाला जो था मेरे ख्याल से टॉप. Petrol is Yes. 2500 गाड़ियां थी पेट्रोल की, फिर 250 था, और फिर उसके बाद में 25 hybrid is are most sensitive to the fire. बट मे बी बिकॉज जितनी EVs और जितनी पेट्रोल व्हीकल्स बिकी हुई हैं तो उसमें We are वो- talking about Yes, percentage. Percentage We you are can talking talk about about. percentage. Yes, So we're the talking about highest percentages. risk is with petrol. Sorry, with hybrid, then petrol, then EVs. Wow. EVs is like 1 in a million or so. Wow. That's some good numbers that we have actually. अगर ऐसा कोई report publish हुआ है. Yeah, report they- published they- हुआ है, it is online. It is done by a very reputed institute. Very nice. तो इसी में जैसे जो लोग EV चलाते हैं और जिसको लेना है, तो they also ask a lot of times कि EV के जो bills आएंगे या इतना electricity मेरा use होगा, that it's so EV does not become a value for money, but it will bankrupt you in that manner. So is that true कि इतना electricity usage होगा उसकी वजह से? Not at all. See, I stay in Delhi, and my monthly bill, Delhi has a subsidy for Yes, EV installation connections. of EV charge charger. meter. Yes, yes. So I have a EV charger installed at my home. A different meter is set up for that, and my the bill for the month is hardly 600 rupees Wow. for the month, wherein I travel about 60 kilometers every day and 120 kilometers every alternate days. So my monthly run is more than 1,000 kilometers. And for that सिर्फ 600 रुपए. Yeah. So Which could which be is- somewhere at around. 60 paisa per kilometer. Wow. This is amazing. So my one trip to my workplace and back is somewhere about hardly say 20 rupees. Yeah, Wherein so in a petrol vehicle, it would I be would 10 be rupees per paying kilometer more actually. than 600 rupees per day. Per day. Yeah. So- पहले हम क्या कहते हैं ना, जब तक EV नहीं थी, we used the metro quite more often. Yes. कि भाई अपनी गाड़ी पेट्रोल वाली महंगी पड़ती है. EV के बाद मेट्रो भी महंगी लगती है. That is true.
I sent मेट्रो में आप दिल्ली We जाके only आओगे do 100 रुपए it- we लगेगा. only do it जब हमें पता है कि यार ट्रैफिक मिलेगा, चल यार थोड़े पैसे ज्यादा खर्च लेते हैं आज की डेट में. Then Otherwise EV is the best. so EVs are cheaper than metro. Yeah, मेरी गाड़ी Yes. सर्विसिंग पे गई थी, मुझे बड़ा दुख हुआ अपनी दूसरी गाड़ी को यूज करते हुए. That's a fact. Of course. कई it's- लोगों के घर में EVs खड़ी हुई हैं, वो जो दूसरी व्हीकल्स थी उनकी, वो खड़ी रही हैं. मैंने जब EV ली थी, मेरी गाड़ी कम से कम नहीं तो 8 महीने मैंने रखी फॉर इकोस्पोर्ट कि पता नहीं EV में कुछ हो जाए, हाँ, ना हो, शायद क्या जरूरत हो, पड़े, बिल्कुल। जरूरत पड़े तो व्हाई शुड आई हाइड, राइट. वो रखी हुई थी. फिर लगा कि जब मैं उसको टेस्ट ड्राइव देता था किसी को जो खरीदने के लिए बाहर आता था, तो मुझे ही खुद लगा चला के लगता था कि यार इसका फिल्टर गंदा है, ये इतनी हैवी क्यों चल रही है, लग रहा है जैसे मैं कोई ट्रैक्टर चला रहा हूँ. एंड लिटरली अब हम आज की डेट में कहीं गलती से अगर किसी की आइस व्हीकल में बैठ जाए तो बैठते सार सबसे पहले हमें डीजल या पेट्रोल की स्मेल Smell आती है, क्योंकि वी आर नॉट Yeah. यूज्ड टू इट. एंड बाकी लोगों को नहीं आती क्योंकि दे आर सो यूज्ड टू इट कि वो अफेक्ट खत्म हो चुका है उनका. Yeah. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और एक और सेकेंड प्रॉब्लम, काफ़ी लोग इंडिया में एक गाड़ी लेते हैं ताकि उसको बेच सकें और उसकी वैल्यू मिल सके. इज दैट अ स्टिल अ कंसर्न? आर ईवीज रीसेल वैल्यू वर्थलेस टुडे? Sold one. So See, if we talk about overall cost of ownership, EVs are much cheaper. यस. Resale market, I would say that it is not yet set up completely for EV because they are very new. यस. So you get a patchy experience. Somebody might get a very good value, somebody might not get a very good value. But I would say that it is because of the new technology, and in fact, it is very fast evolving as well. Once it stabilizes, then the resale market will also be stabilized. तो अभी कोई आपको मिला है जिसने कभी सेकंड हैंड ईवी कोई ली हो? हाँ, मतलब बहुत ये- लोगों को हाँ, दिलवाई है, बहुत हाँ। लोगों ने खरीदी है, यस, बहुत लोगों ने काफी बेची So है. that market exists. That Maybe market, informally, yes. शायद informally, formally ना हो, but 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 it will like- take time, I think. It exists. The problem is अभी आज की डेट में हम ईवी एडवोकेसी कर रहे हैं कि लोगों को आइस व्हीकल से ट्रांजिशन करके ईवी पे आना चाहिए, ठीक है. नाउ व्हेन यू से कि उसको एक सेकेंड हैंड ईवी लेनी चाहिए, जो रिस्क है वो उसके दिमाग में वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है. सो वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो एक प्राइस जो है उसके ऊपर बहुत कम ऑफर करता है. बट there are a lot of used car dealers who are making big money, क्योंकि बेचने वाले को लगता है कि मुझे बेचनी है, कोई बायर नहीं मिल रहा डायरेक्टली, डीलर ले रहा है तो डीलर उसको कम में लेके और बहुत अच्छे मार्जिन पे बेच रहा है, ठीक है. आप बाकी छोड़ो, मैंने एक जो स्क्रैप वाले होते हैं ना, जो इंश्योरेंस कंपनियों का सामान उठाते हैं कि गाड़ी टोटल लॉस में चली गई, ठीक है. मेरे को एक बंदा मिला, वो गाड़ी उठा रहा था शोरूम से, टाटा नेक्सॉन प्राइम थी 2020 मॉडल, ठीक है. अगर मैं उसकी एक नॉमिनल वैल्यू लगाऊं आज की डेट में तो 4-5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी, ठीक है. उस बंदे ने वो गाड़ी ली, वो कहता है मैं इस गाड़ी को लूँगा, बनाऊंगा मायापुरी से स्पेयर पार्ट्स लेके, जिसके उसके पास पहले से सारे के सारे जुगाड़ हैं, ठीक है, वेंडर्स हैं, जुगाड़ हैं. वो पूरी की पूरी उसने गाड़ी बनाई. मैंने उसके बाद 4 महीने बाद उस बंदे को कॉल किया कि वो गाड़ी बन गई. कहता बन गई, बन के बिक भी गई. मैं कहा आपने कितने की बेची? कहता 7.5 लाख रुपए की. तो जो पूरी गाड़ी जो टोटली डैमेज में जा चुकी थी, यू नो, वो गाड़ी भी वो लोग 7 लाख की बेच पाए. सो आई वुड से देयर इज अ गैप. What people these days look at is a lot of convenience. हमें लगता है डीलर को दे दी, इजी हो गया. और फैक्ट भी है, एक बंदे ने हमारे ग्रुप पे थोड़े दिन पहले ही मेंशन किया कि मैंने OLX पे गाड़ी बेची थी अपनी. 1.5 साल बाद मुझे क्या कहते हैं बिहार की स्टेट से नोटिस आ गया कि आपकी गाड़ी में स्मगलिंग हुई है दारू की, ठीक है. एंड ही हैड टू गो देयर, और वो जितने पैसे उसने OLX से शायद डायरेक्ट यूज़र को बेच के कमाए थे, क्योंकि उसकी गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई थी उसके नाम से. सो समटाइम्स यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो जहाँ डीलर्स आएंगे बीच में, वो कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी कमाई का सोर्स, वो भी तो अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, उनको भी अपना ब्रेड एंड बटर कमाना है. किसी गाड़ी में लॉस तो किसी में ज़्यादा फायदा. दैट विल बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. Also the segment of people who are using EV right now, है ना, you are certain class of people who use EV and आप अगर इंटीरियर्स में जाओगे तो लोग इतने फ्रेंडली नहीं है, इतने मतलब अडाप्टेड नहीं है EV यूसेज के लिए. तो जब उनको गाड़ी खरीदनी होती है तो दे विल नेवर इवन थिंक अबाउट एन EV.
तो उसकी वजह से भी अगर हम उनको सेल करने की कोशिश करें तो उसकी वजह से भी द प्राइसेस गो डाउन. बट अगर आप अर्बन एरियाज में देखेंगे या फिर मतलब इट्स अ न्यू मार्केट, सो इट इज़ अ डेवलपिंग थिंग. तो और आपने किसी ने भी कभी कोल्ड वेदर में ईवी चलाई है? इज देयर एनी प्रॉब्लम जो ईवीज में आती है? विंटर्स में सी सभी ने चलाई है ऑब्वियसली जिसने ली है जी. प्रॉब्लम आती है ऐसा नहीं है, बट हाँ रेंज थोड़ी कम हो जाती है. रीजन बीइंग तो हम कि कितना आप डिफरेंस की बात कर रहे आप केबिन में अगर हीटर यूज करते हैं तो हीटर इज द एनर्जी हॉगर बेसिकली. ओके. वो जितनी देर चलेगा उतनी देर इट विल ईट अप द बैटरी. कितना कम लेके चलो, आई थिंक you can straight away deduct 10 to 15% That will depend upon the lesser. chemistry of the battery. It would NMC will work much better if you're comparing with the LFP. that is also right. So chemistry also has a effect, but the heater effect would be same for both. That is mainly the reason जिन areas में ज़्यादा cold temperature रहता है, most of the OEMs used only NMC batteries, right? So that makes a lot of difference. But व्हाट इज द डिफरेंस फॉर NMC बैटरी इन दैट केस? मतलब कितना उसमें डिफरेंस आएगा? जैसे आपने बोला 10 से 15%. So 10 से 15% 10 से आपका 15% और का difference हीटर का आता है जो सब जीरो टेम्परेचर्स हैं जहाँ एग्जैक्टली, मतलब So, एरियाज वहाँ- ऑफ स्नो एंड ऑल दैट. वहाँ पे LFPs में क्या है, दे हैव गॉट little lesser holding capacity in those terrains. So again around 10% आराम से. easily आपको कम करना पड़ेगा, बट वो मोस्ट ऑफ इंडिया में वो नहीं होता है. तो एक जगह पे आई फेल्ट मुझे अगर ईवी को बैटरी को अपनी फुल चार्ज रखना है एंड टू ब्रिंग द रिस्क टू मिनिमम कि मेरा रेंज का लॉस हो या मेरा SOC का लॉस हो. जब मैं ड्राइव पे था टूवर्ड्स भूटान, ओके, तो वहाँ टेम्परेचर्स रात को काफ़ी डिप करते हैं. जिस टाइम पे हम वहाँ पे थे दैट वाज नवंबर दिसंबर, एंड तब वहाँ टेम्परेचर -1 से -4 के बीच में गया था एंड वी वर इन ए टाटा नेक्सॉन ऑब्वियसली. सो नोइंगली दैट इट हैज़ ए LFP बैटरी, मैंने उसको रात को 3.3 पे लगाया रादर देन यूजिंग ए DC चार्जर और ए 7.2 चार्जर, सो दैट आई वांटेड इट टू रिमेन वार्म और वो हीट चलती रहे तो बैटरी अपने एक थ्रेशोल्ड के पास में रहे और वो ज़्यादा कोलगेट मोड में ना जाए. ओके, देयर इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड कोलगेटिंग, देयर इज अ टर्म. जब आप किसी चार्जर पे जाते हो और आपकी बैटरी बहुत ठंडी होती है, ठीक है, तो चार्जर इमीडिएटली या बैटरी का जो BMS है वो इमीडिएटली चार्जर से उसकी पीक पावर नहीं लेता. If it has a capacity of 30 kilowatt, it might start with a 7 kilowatt, slowly and gradually come to 12, then go further, and after 20-30% or after a period of 20-30 minutes, it may reach to its peak when the battery temperature has met its threshold. but nowadays the vehicles which are coming, they come with the battery conditioning as Yes, well. they have a So- preconditioning. So you can always switch that You can preconditioning use on. All one the or new cars 2% are of coming like battery. that? Or Yes, even the Mahindras, both of them, the Bs and the XEV, they come with a preconditioning. Earlier, it used to be only in Ioniq by Hyundai, which was more of a 50 lakh, car, और एक Kia EV6, उसमें preconditioning आती थी बिकॉज वो बाहर से CBD यूनिट्स आए हैं स्ट्रेट अवे, तो उनमें वो लगाया आता था. इंडिया में इतनी ज़रूरत नहीं है टॉकिंग अबाउट इट, बट येस इट मेक्स अ डिफरेंस, एंड दैट इज़ वेयर आई से कि इंडियन OEMs, द होम ग्रोन प्लेयर्स, हैव गॉन वेरी फार. They have excelled in many areas. In a very short span of time.